خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں فکر انگیز تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ تحریر علم کی طاقت پر ہے اور سر سید احمد خان کی جو میراث ہے اس کے گرد گھومتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ علم حاصل کرنا یہ صرف کوئی ذاتی شوق یا بس اچھی نوکری کا معاملہ نہیں ہے۔ صحیح۔ دراصل جیسا کہ یہ تحریر واضح کرتی ہے، علم حاصل کرنا اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے، اپنے خاندان کو سنوارنا ہے اور بحیثیت مجموعی اپنی پوری قوم کے مستقبل کو روشن کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ ایک بہت وسیع تناظر ہے نا، جو آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا سر سید کے زمانے میں تھا۔ بالکل، اور اس تحریر کو اس کے پیغام کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں وہ تاریخی پس منظر ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے جس میں سر سید یہ باتیں کر رہے تھے۔ جی ہاں، وہ ایک ایسا دور تھا، خاص طور پر آپ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا زمانہ، جب انہوں نے بہت شدت سے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کے مسلمان جدید تعلیم میں باقی قوموں سے بہت پیچھے ہیں۔ اچھا، یہ صرف ایک آبزرویشن نہیں تھی، سمجھیں، یہ ایک گہرا احساس زیاں تھا، ایک درد تھا جس نے انہیں ایک غیر معمولی تعلیمی تحریک شروع کرنے پر مجبور کیا۔ یہ پس منظر واقعی بہت اہم ہے۔ تحریر میں بھی اس کا ذکر ہے بالکل واضح طور پر کہ جب سر سید نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی، یہ تعلیمی پسماندگی، بے عملی، تو انہیں کتنا شدید دکھ ہوا تھا۔ یہ کوئی ایسی اوپری مایوسی نہیں تھی، ان کا دل آپ کہہ لیں حقیقتاً رنجیدہ تھا اپنی قوم کی اس حالت پر۔ جی بالکل، اور شاید اسی کیفیت میں انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جسے یہ تحریر بھی نقل کرتی ہے اور جو آج بھی سچ پوچھے تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ کون سا جملہ؟ اگر ہم اپنے علم کو نہیں بڑھاوا دیں گے تو ہماری نسلیں صرف ماضی میں سمٹ جائیں گی۔ جی، الفاظ سادہ ہیں لیکن ان میں ایک پوری قوم کے مستقبل کی فکر چھپی ہوئی ہے۔ یقیناً، اور اس قول کی گہرائی پر غور کرنا چاہیے۔ ماضی میں سمٹ جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ مطلب صرف یہ تو نہیں کہ ہم اپنی تاریخ بھول جائیں یا اسے یاد نہ رکھیں، اس کا اصل مطلب ہے ترقی کے سفر میں ٹھہر جانا، اچھا، رک جانا، جی، نئے زمانے کے تقاضوں سے، نئے علوم سے، ٹیکنالوجی سے، بدلتی ہوئی دنیا سے آپ سمجھے بالکل کٹ جانا۔ علم وہ انجن ہے جو کسی قوم کو آگے بڑھاتا ہے۔ صحیح، یہ اسے حال کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کی بصیرت دیتا ہے۔ علم کے بغیر قومیں کیا کرتی ہیں؟ بس ماضی کے قصے سناتی رہتی ہیں، حال اور مستقبل میں اپنا مقام نہیں بنا سکتی۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں فکری موت ہے۔ فکری موت، یہ واقعی ایک طاقتور تشریح ہے۔ ماضی میں قید ہو جانا یعنی حال سے لا تعلق، مستقبل سے نا امید۔ تحریر اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ سر سید کا یہ مشن آسان نہیں تھا۔ مطلب کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی یہ راہ؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریر بتاتی ہے کہ بہت مشکل حالات تھے جب لوگ ان کی سوچ پر، ان کے جدید نظریات پر تنقید کر رہے تھے، ہر طرف سے، تب بھی وہ ڈٹے رہے، اپنے موقف پر قائم رہے۔ جی، تحریر میں ان کی ثابت قدمی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ لوگ جو شاید ہمدرد ہونے چاہیے تھے وہی رکاوٹ بن رہے تھے۔ بالکل روایتی سوچ والے لوگ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جدید تعلیم کی باتیں ہیں یہ مذہب کے لیے خطرہ ہے، ثقافت کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن سر سید پیچھے نہیں ہٹے۔ تحریر کا ایک جملہ ہے بڑا معنی خیز کہ انہوں نے راتوں کو جاگ کر علم کا راستہ دکھایا۔ جی ہاں، یہ صرف محاورہ نہیں لگتا، یہ ان کی ذاتی قربانی، ان کی انتھک محنت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ مخالفت کیسی تھی، کس قسم کی تھی۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ یہ صرف کوئی علمی اختلاف نہیں تھا، آپ سمجھیں، ان پر تو کفر کے فتوے تک لگے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، انہیں کہا گیا کہ یہ تو مغرب زدہ ہیں، مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، ان کی نیت پر شک کیا گیا۔ ایسے ماحول میں ثابت قدم رہنا یہ غیر معمولی ہمت کا کام تھا، غیر معمولی ویژن چاہیے۔ صحیح۔ سر سید کی عظمت صرف ان کے نظریات میں نہیں ہے بلکہ ان نظریات پر قائم رہنے کی ہمت میں بھی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں تھیں، انہوں نے عملی قدم بھی اٹھائے جو ان کے عزم کا ثبوت ہیں۔ جی، تحریر کے مطابق انہوں نے صرف دوسروں کو نصیحت نہیں کی بلکہ خود عملی نمونہ پیش کیا۔
पहले अपने बच्चों को, खास तौर पर बेटे सैयद महमूद को इंग्लिस्तान भेजा जदीद तालीम के लिए। जी। फिर उस पैगाम को आम किया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। ये बहुत अहम नुक्ता है। आज हमें शायद ये बात आम सी लगे, लेकिन उस जमाने में खास तौर पर औरतों की तालीम के हवाले से ओहो, ये तो एक इनकलाबी ऐलान था। दर हकीकत ये महज एक ऐलान नहीं था, ये उनके पूरे मिशन का निचोड़ था, समझे। इसे एक समाजी रवैया बनाने की कोशिश थी। सही। इस जमाने में जहां लड़कियों को बस घर की चार दीवारी तक महदूद समझा जाता था, वहां तालीम को मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर फर्ज करार देना वाकई एक जुर्रतमंदाना कदम था। जी। और तहरीर में जो ये नुक्ता उठाया गया है ना कि उन्होंने तालीम को इबादत का दर्जा दिया, हाँ, मैं भी इसी पर आ रहा था। इसका क्या मतलब है? ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि इल्म हासिल करना उनके नज़दीक सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए नहीं था। अच्छी नौकरी, समाजी रुतबा, ये सब ठीक है, लेकिन असल मकसद ये नहीं था। इल्म हासिल करना एक रूहानी अमल था, एक मुक़द्दस फरीज़ा। अच्छा। जैसे नमाज रोज़ा इबादत है ना, वैसे ही इल्म का हुसूल भी एक इबादत है जिसका मकसद अल्लाह की तख्लीक को समझना है, इंसानियत के भलाई के लिए काम करना है। वाह, ये जाविया तो वाकई बहुत मुतासिर कौन है। तालीम बतौर इबादत, ये सोचिए इल्म की अहमियत को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाती है। जी। और इसी सोच, इसी अज़्म का नतीजा था कि वो तमाम तर मुखालफतों के बावजूद कामयाब हुए। तहरीर एक बड़ा अहम सवाल पूछती है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। क्या सवाल? सोचिए, अगर सर सैयद अपने वक्त में हिम्मत हार जाते, अगर वो लोगों की तनकीद से, मुखालफत से घबरा कर पीछे हट जाते, तो क्या आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा अजीम इदारा वजूद में आ सकता था? क्या बरे सगीर के लाखों मुसलमान जदीद तालीम की रोशनी से महरूम न रह जाते? बड़ा सवाल है। और तहरीर खुद ही उसका जवाब देती है, हरगिज़ नहीं। बिल्कुल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम सर सैयद की उसी सोच, उसी दर्द, उसी इस्तिकामत का, आप कह लें, अमली सबूत है। जी। उन्होंने मुश्किलात को रुकावट नहीं समझा, उन्हें एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया। जी हाँ। लोगों के ताने सुने, फतवे बर्दाश्त किए, माली मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अपने मकसद से एक इंच पीछे नहीं हटे। सही। और आज हम देखते हैं अलीगढ़ और उसकी तर्ज पर जो दूसरे इदारे बने, वो किस तरह नस्ल दर नस्ल लाखों नौजवानों को, लड़कों लड़कियों को इल्म की रोशनी दे रहे हैं। जी, ये सर सैयद के लगाए हुए पौधे का फल है। बिल्कुल। और सर सैयद की ये मिरास, उनका ये पैगाम आज के दौर में तो मैं समझती हूँ पहले से भी ज्यादा मुताल्लिका हो गया है, ज्यादा अहम हो गया है। कैसे? देखिए, दुनिया बहुत बदल गई है, चैलेंजेस नए हैं, लेकिन उनका बुनियादी हल आज भी वही है, इल्म। अच्छा। तहरीर बहुत वाज़े तौर पर इस ताल्लुक को जोड़ती है। आज हमें जिन बड़े मसाइल का सामना है, जैसे बेरोजगारी है बड़े पैमाने पर, जी बिल्कुल, माशी अदम इस्तेहकाम है, समाजी इंतशार है, और ख़ास तौर पर ये तंग नज़ीरी और अदम बर्दाश्त, उन सब का मुकाबला करने का सबसे मौसर हथियार इल्म ही है। जी। इल्म हमें मसाइल का तजिया करने की सलाहियत देता है, नए हल तलाश करने की हिम्मत देता है, और दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने का हौसला देता है। सही। सर सैयद की जिंदगी से हमें एक और अहम सबक मिलता है, जिसे तहरीर ने भी उजागर किया है। वो क्या? मुश्किलात से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें एक मौका समझना। मौका? मुश्किल को? जी, हर मुश्किल, हर इम्तिहान अपने अंदर तरक्की का एक नया इम्कान लिए होता है। ये जो मुस्बत रवैया है ना, तामीरी रवैया, ये इल्म और शऊर से ही पैदा होता है। अच्छा। जब इंसान जानता है कि तारीख में कौमों ने कैसे मुश्किलात पर काबू पाया, तो उसे अपने मसाइल से निमटने का भी हौसला मिलता है। तो इस सारी गुफ्तगू और तहरीर के पैगाम की रोशनी में सवाल ये पैदा होता है कि आज हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, बहैसियत फर्द भी और बहैसियत कौम भी। अहम सवाल है। क्या सिर्फ सर सैयद की तारीफ कर देना काफी है, उनके कारनामे याद कर लेना? जाहिर है नहीं। तहरीर हमें इससे आगे बढ़कर अमल की दावत देती है। ये कहती है कि हमें सर सैयद की मिसाल को अपनाना होगा, उनके मिशन को आगे बढ़ाना होगा। जी। इस सिलसिले में तहरीर कुछ बहुत ठोस अमली इक़दामात भी तजवीज़ करती है, जिन पर हम सब अमल कर सकते हैं। जैसे कि? पहला कदम, अपने घरों में इल्म का माहौल बनाना। अच्छा। मतलब किताबों को जगह देना, पढ़ने लिखने की हौसला अफजाई करना, घर में इल्मी गुफ्तगू करना,
दूसरा, अपने बच्चों को बेहतरीन मुमकिना तालीम दिलवाने की कोशिश करना, चाहे उसके लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुर्बानी ही देनी पड़े। बिल्कुल तीसरा, खुद भी सीखने का अमल जारी रखना, ये नहीं कि बस डिग्री मिल गई और ख़त्म। सही। नए उलूम, नई महारतें, नई ज़बानें, सीखने का जज्बा जिंदा रखना। इल्म किसी उम्र का मोहताज नहीं। जी। और चौथा, जो बहुत अहम है, ये सब करते हुए अपने दीन को, अपनी अक़दार को, अपनी सकाफत को मजबूती से थामे रखना। हाँ, ये तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। सर सैयद जदीदियत के हामी ज़रूर थे, लेकिन अपनी मजहबी और सकाफती शनाख्त की कीमत पर नहीं। ये निकात बहुत अहम है और इनकी अहमियत सिर्फ इनफरादी सतह तक महदूद नहीं है। अच्छा। लेकिन जब हर शख्स अपने घर में इल्म की शमा रोशन करेगा तो ये रोशनियां मिलकर पूरे मुआशरे को मुनव्वर कर देंगी। ये समझना ज़रूरी है कि बड़ी समाजी तब्दीलियां हमेशा छोटी इनफरादी कोशिशों से शुरू होती हैं। जी। जब लोग तालीम याफ्ता होंगे तो वो बेहतर शहरी बनेंगे, मुआशरती मसाइल को बेहतर समझेंगे, उनके हल में अपना किरदार अदा करेंगे। इल्म रोज़गार के नए दरवाजे खोलता है, गुर्बत कम करने में मदद देता है और सबसे बढ़कर ये इंसान की सोच को वसी करता है। बिल्कुल। ये तंग नज़ीरी का, तासुब का, इंतहा पसंदी का बेहतरीन इलाज है। बिल्कुल। इल्म हमें सवाल करना सिखाता है, तनकीदी नज़र से देखना सिखाता है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय तहकीक की तरगीब देता है। जी। ये वो खूबियां हैं जो किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का और इस अहम तहरीर का जौहर, इसका बुनियादी और हतमी पैगाम यही है जिसे हमें अपने ज़हनों में बिठा लेना चाहिए। क्या है वो पैगाम? इल्म ही वो रास्ता है जो इंसान को हकीकी इज्जत, बेहतर रोजगार और अल्लाह की रहमत तक ले जाता है। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ दुनियावी कामयाबी की कुंजी नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने और अपने खालिक की खुशनुदी हासिल करने का जरिया भी है। और इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं एक नुक्ता मजीद गौर के लिए पेश करना चाहूँगी, जरूर, जो अगरचा तहरीर में शायद इन अल्फाज में बयान नहीं हुआ, लेकिन उसकी रूह से पूरी तरह हम आहंग है। इल्म हासिल करने का अमल सिर्फ मालूमात इकट्ठी करना नहीं है या इम्तिहान पास करके डिग्रियां लेना नहीं है। इसका एक बहुत अहम पहलू, बल्कि शायद सबसे अहम पहलू, तनकीदी शऊर की नशोनुमा है। क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग। जी, यानी चीज़ों को बस मानना लेना, बल्कि उनकी गहराई में जाना, सवाल उठाना, मुख्तलिफ जावियों से परखना और मंतकी दलाइल की बुनियाद पर अपनी राय कायम करना। यही वो सलाहियत है जो अफराद को ज़हनी तौर पर आज़ाद बनाती है और कौमों को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर डालती है। सही। तज्जिया करने और उनसे नताइज निकालने के काबिल बनाता है। और यही सलाहियत हमें दूसरों के मुख्तलिफ नज़रियात को समझने और उनका एहतराम करने में भी मदद देती है। जी बिल्कुल, जो एक पुरअमन और बर्दाश्त वाले मुआशरे के लिए लाजमी है। तो इल्म का सफ़र दरअसल खुद शनासी और वुसअत नज़री का सफ़र है। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरती